प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। हमारा आज का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में बात करने से पहले आप यह ऑडियो सुने। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਸਤੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਚਿਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ DAV ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ DAV ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1919 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ब्रिटिश सरकार ਦੇ हिंसक विरोधी वकालत करनी शुरू कर दी। इस ऑडियो में आपने भगत सिंह का नाम कितनी बार सुना? क्या आप उसकी गिनती बता सकते हैं? अब हम इसी ऑडियो को दोबारा सुनते हैं। चलिए सुनते हैं इसे। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਸਤੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਚਿਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ DAV ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ DAV ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1919 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ वकालत करनी शुरू कर ਦਿੱਤੀ। अब आपने भगत सिंह के नाम को कितनी बार सुना, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, अब यह 5 बार बोला गया है। इन दोनों ऑडियो को सुनने का हमारा तात्पर्य है कि अगर हम संज्ञा का उच्चारण अधिक बार करेंगे तो भाषा का सौंदर्य अच्छी तरह से प्रकट नहीं होगा। इसलिए हम संज्ञा की कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे भाषा का सौंदर्य बरकरार रहता है। हमारा आज का विषय इस शब्द के बारे में है जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। पंजाबी भाषा में सर्वनाम शब्द के लिए पड़नाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम अपनी बातचीत में दोनों शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। वह शब्द जो नाम अथवा संज्ञा की जगह प्रयोग किया जाता है उसे पड़नाम अथवा सर्वनाम कहते हैं। पड़नाम हमारे जीवन में भाषा के सौंदर्यपूर्ण तरीके से व्यक्तव्य में हमारी मदद करते हैं। एक बच्चा जो इतना छोटा है कि उसे सही से अपना नाम पुकारना भी नहीं आता, तो भी वो एक पड़नाम मैं का प्रयोग तो बहुत अच्छी तरह से कर ही लेता है। पंजाबी में पड़नाम चाहे सीमित मात्रा में ही है, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग असीमित रूप से किया जा सकता है। इसके बारे में हम दूसरे हफ्ते में पुरुष के अध्याय में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 1-2 उदाहरण इसके देखे जा सकते हैं। जैसे उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम में है। अगर इसके प्रयोग को देखें तो इसको मैं के अलावा मेरा, मेरे, मेरी, मेरियां, मेरियां, मेरिये, मैनू, मैथो इत्यादि के रूप में अलग अलग प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आप मेरियां शब्द का प्रयोग 2016 में आई बॉलीवुड फिल्म ए दिल है मुश्किल के चन्ना मेरिया गाने में हुआ देख सकते हैं। अब हम पंजाबी में पड़नाव के भेद के बारे में जानेंगे। पंजाबी में भी हिंदी के समान ही पड़नाव अथवा सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक पड़नाव, निश्चयवाचक पड़नाव, अनिश्चयवाचक पड़नाव, संबंधवाचक पड़नाव, प्रश्नवाचक पड़नाव और निजवाचक पड़नाव। पुरुषवाचक पड़नाव के बारे में हम विस्तार से दूसरे सप्ताह में बात कर चुके हैं। इसके बारे में हम संक्षिप्त में बात करते हैं। इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक पड़नाव कहा जाता है। पंजाबी में पुरुषवाचक पड़नाव मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं एकवचन और असी बहुवचन पड़नाव है। हालांकि कभी कभार कहीं कहीं आपको असा शब्द का इस्तेमाल हुआ भी देखने को मिल सकता है। मध्यम पुरुष में तुम एकवचन और तुसी बहुवचन पड़नाव है। हालांकि कभी कभार कहीं कहीं आपको तुसा शब्द का इस्तेमाल हुआ भी देखने को मिल सकता है। अन्य पुरुष के अधीन ओह और एह एकवचन और बहुवचन पड़नाव है। निश्चयवाचक पड़नाव, पड़नाव के वह रूप जिससे हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक पड़नाव कहते हैं, अथवा जो पड़नाव निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराएं उसे निश्चयवाचक पड़नाव कहते हैं। पंजाबी में निश्चयवाचक पड़नाव की स्थिति कुछ पेचीदा सी है, क्योंकि अगर यह पहले से ये किसी नाम की जगह किए जाएं तो यह पुरुषवाचक पड़नाव को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर यह स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त हो और किसी व्यक्ति
या वस्तु की तरफ संकेत करे तो यह निश्चयवाचक पढ़नाव का कार्य करते हैं। निश्चयवाचक पढ़नाव के बारे में हमने दूसरे सप्ताह में पढ़ा है, आप पुनः उसे एक बार अवश्य देखें। अनिश्चयवाचक पढ़नाव, पढ़नाव का यह भेद निश्चयवाचक पढ़नाव से बिल्कुल उलट है। निश्चयवाचक पढ़नाव में जहां दिखाई दे रहे व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत किया जाता है, वहीं अनिश्चयवाचक पढ़नाव अथवा सर्वनाम से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ अस्पष्ट रूप से संकेत करता है, जैसे कोई, कुछ, कई, सब, सारे, अनेक, बहुते, थोड़े इत्यादि। कई दिनों तो धूप नहीं निकली, कई दिनों से धूप नहीं निकली। कल नू सब बच्चे पाठ याद करके आउणगे, कल को सभी बच्चे पाठ याद करके आएंगे। सारे अपने अपने घर जाओ, सभी अपने अपने घर जाओ। इस दुनिया दे अनेक रंग हैं, इस दुनिया के अनेक रंग हैं। बहुत सारे विद्यार्थी गैर हाजिर सन, बहुत सारे विद्यार्थी अनुपस्थित थे। संबंधवाचक पढ़नाव, वह पढ़नाव जो दो वाक्य या उपवाक्यों का आपस में संबंध स्थापित करता है, उसे संबंधवाचक पढ़नाव अथवा सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जेड़ा, जैसा, जो, जिस इत्यादि। जो पढ़ेंगे वही पास होंगे, जो पढ़ेंगे वही पास होंगे। जैसा बीजोगे तैसा वड्डोगे, जैसा बीजोगे तैसा काटोगे। ਇਹ ਕੁੜੀ है ਜਿਹੜੀ पंजाब विचों पहले स्थान ते आई है। यह वह लड़की है जो पंजाब में पहले स्थान पर आई है। ਜਿਹੜੇ गरजते हैं ਉਹ वरदे नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। प्रश्नवाचक पढ़नाव, ऐसे नाम अथवा संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाला शब्द जिसके बारे में कुछ पूछा जाए अथवा जिसके बारे में कुछ सवाल पूछा जाए, उसे प्रश्नवाचक पढ़नाव अथवा सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, की, केहड़ा, किस, किथे इत्यादि। ओह कौन है, वह कौन है। ओह किथे रहंदी है, वह कहाँ रहती है। ओह की करदी है, वह क्या करती है। उसदा पिंड केड़ा है, उसका गांव कौन सा है। ओह किस कॉलेज विच पढ़दा है, वह किस कॉलेज में पढ़ता है। धन्यवाद।